हेलो ऑल। सो आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज लॉ वेंसडे सेशन। यहाँ आज हम डिस्कस करेंगे द ऑनगोइंग टसल बिटवीन द दिल्ली गवर्नमेंट एंड द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये टसल क्या है, ये न्यूज में क्यों है, एंड आर्टिकल 239AA इतना क्यों अभी रेलिवेंट है। सो विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दिस इन टुडेज वीडियो। सो मेक श्योर you're watching this video till the end so you get to know what is the ongoing controversy or what is the ongoing tussle between the union government and government of Delhi. In this video, first of all, we'll be covering what is Article 239AA and why is it in news. Then we'll understand a brief background of why this article is so relevant or what are the special powers that it is contributing. इसके बाद हम ये समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या टेक है on this ongoing tussle and why the issue is still going on. Since Delhi is a union territory and Delhi is headed by AAP government while we have in center BJP government, so there is an ongoing tussle because center नहीं चाहता है कि इंडिया का कैपिटल that is Delhi उस पे वो कंट्रोल लूज करे, while Delhi is continuously demanding a statehood and a control over bureaucracy. So this is the ongoing tussle and इसके लिए बार बार the Delhi government is going to the court and court is giving different verdicts. So this is the ongoing tussle. Now let us understand briefly before we go into more detail of what is this tussle all about. Let us understand what is this Article 239AA and how is it relevant here. So when India became independent, उस समय we merged different princely state to become one independent nation. अब उसके बाद काफी सारे protest होने लगे to divide the state on linguistic basis. So as a result, 7th Amendment pass हुआ Constitution में, where we formed State Reorganization Commission and Delhi को एक union territory का status दिया गया. Now since Delhi was our capital of India, so हमेशा से center का एक interest रहा है in running the Delhi. So अभी यहाँ पर अब after the Congress government left, after the Congress government was moved out of the power, दिल्ली का कंट्रोल गया आप गवर्नमेंट के पास एंड सेंटर में आई बीजेपी गवर्नमेंट. अब सिंस देयर वर टू डिफरेंट गवर्नमेंट्स रूलिंग द सेंटर एंड द NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, सो यहाँ पे कंट्रोवर्सी शुरू हुई. अब दिल्ली गवर्नमेंट स्टार्टिंग से दिल्ली वाज डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेटहुड सो दैट कि दिल्ली को कंट्रोल मिल सके टू रन. अब यहाँ पर अगेन जब there was lot of ongoing debate and discussion going on, then the center decided to form a committee and that committee is known as S. Balakrishnan Committee. So this committee gave a recommendation and on the basis of that recommendation, two articles were added in the constitution, Article 239AA and Article 239AB. So Article 239AA क्या कहता है? Article 239AA एक स्पेशल पावर देता है दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली को टू मेक laws with respect to the matters that are given in state list and concurrent list. State list में वो matters हैं जिनमें state legislate कर सकता है, laws बना सकता है, और concurrent list में वो सारे matters हैं जिनमें state and center दोनों legislate करते हैं, laws बनाते हैं. So अभी दिल्ली के legislative assembly को power दे दिया गया कि आप state list and concurrent list से related matters से आप laws बना सकते हैं. But यहाँ पे एक restriction लगाया गया कि with respect to three matters, that is land, public order एंड पुलिस, इन तीनों पर दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली कंट्रोल नहीं कर सकती है. रादर द हेड ऑफ द स्टेट दैट इज लेफ्टिनेंट एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर, ही विल बी कंट्रोलिंग और he will be legislating in these three matters. अब who is lieutenant governor? So lieutenant governor, जैसे हम हर state की बात करते हैं तो हर state में nominated head होते हैं chief minister, but president also appoints the head of the state who is known as governor. When it comes to union territory, तो union territory में अब गवर्नर की जगह पर जो नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट के एजेंट होते हैं, नॉमिनेटेड हेड होते हैं, दे आर कॉल्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर. In Delhi, Puducherry and Jammu and Kashmir, they are known as Lieutenant Governor, and in rest of the union territories, they are known as Administrator or Commissioner. So this is Article 239AA, which gives a special power to Legislative Assembly of Delhi so that they can legislate in these matter. Now what is 239AB? अभी इसका क्या रेलेवेंस है? तो आर्टिकल 239AB ये कहता है कि ये जो स्पेशल स्टेटस दिया गया है 69th अमेंडमेंट से, ठीक है, एस बालाकृष्णन कमेटी के रिकमेंडेशन के 69th अमेंडमेंट से जो स्पेशल स्टेटस दिया गया है दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली को, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो प्रेसिडेंट कैन रिमूव दिस स्पेशल स्टेटस ऑन
the will and discretion. So this is what is given in Article 239AB. Although ये अभी तक यूज नहीं हुआ है, ये ज्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं है, but the controversy is revolving around Article 239AA and to be specific, entry 41 of state list, that is list 2. सो अभी हमने समझा कि आर्टिकल 239AA क्या होता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अब टसल की क्या बात हुई, बिकॉज ऑलरेडी ये स्पेसिफाई कर दिया गया कि ठीक है लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर है एंड देन लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास विथ रिस्पेक्ट टू 3 मैटर्स पावर है. सो यहाँ पर टसल क्या है, अब जब ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया गया कि ठीक है दिल्ली का लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी डीलिंग ऑन द मैटर्स दैट आर स्पेसिफाइड इन स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट एंड lieutenant governor will be dealing on the matters that are specified in the 3 matters that are there, land, police and public order. So abhi what is the tussle, since we have already segregated what is going on. So यहाँ पे अब issue ये था कि जब lieutenant governor is acting तो क्या वो अपनी मर्जी से अपने डिस्क्रिशन से ऐड करेंगे या एक्ट करेंगे ऑन दीज 3 मैटर्स, और वेदर ही विल बी टेकिंग एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अभी एड एंड एडवाइस का क्या फंडा है? सो एड एंड एडवाइस मतलब कि व्हाटएवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे आर सजेस्टिंग, उसके बेसिस पे द लेफ्टिनेंट गवर्नर विल बी एक्टिंग, और लेफ्टिनेंट गवर्नर इन मैटर्स पर अपनी मर्जी से डिसीजन लेंगे. सो अभी सबसे पहले दिल्ली गवर्नमेंट पहुंची हाई कोर्ट 2016 में इन द केस ऑफ राजेंद्र प्रसाद वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली. अब यहाँ पर हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया इन फेवर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट दैट कि लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एड एंड एडवाइस का जरूरत नहीं है लेफ्टिनेंट गवर्नर को व्हाइल ही इज एक्टिंग ऑन दीज 3 मैटर्स दैट इज लैंड, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर. सो इसको वापस से अगेन चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में. सो जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंचा तो 3 जजेस की बेंच बैठी. अभी 3 जजेस के बेंच ने क्या कहा? The bench was headed by Chief Justice of India, the then Chief Justice of India, Justice Deepak Mishra. अभी यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट के 3 कंटेंशन थे. सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमें स्टेटहुड चाहिए, हमें अब यूनियन टेरिटरी नहीं बनना है. सेकंड उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर ही एक्ट करेंगे इन द 3 मैटर्स जो कि इंटरेस्टेड है टू लेफ्टिनेंट गवर्नर, दैट इज लैंड, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस. इसके अलावा थर्ड डिमांड जो दिल्ली गवर्नमेंट का था वाज दैट कि सिंस सर्विस मैटर अगर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दोगे, अगर सर्विस ऑफ सर्विसेज की, पब्लिक सर्विसेज का ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये सारा पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड अल्टीमेटली सेंटर के पास रहेगा, तो व्हाई विल द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बी लायबल और रिस्पॉन्सिबल टू द चीफ मिनिस्टर? सो हाउ विल द चीफ मिनिस्टर बी एबल टू रन द टेरिटरी? वो कैसे रन करेंगे, वो कैसे एडमिनिस्टर करेंगे? सो इट विल बिकम डिफिकल्ट. तो अभी यहाँ पर जब मैटर कोर्ट में था तो कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि हम सेपरेट स्टेटहुड नहीं देंगे. सेकंड उनका कहना था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी मर्जी से एक्ट नहीं कर सकते हैं, उनको एक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है दैट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो उनके एड एंड एडवाइस पे ही एक्ट करना होगा इन दीज 3 मैटर्स, तो कंप्लीट डिस्क्रिशन नहीं है. थर्डली ये कहा कि देखो दिल्ली का जो एरिया है या दिल्ली का जो लोकेशन है वो एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट रखता है यूनियन गवर्नमेंट के लिए बिकॉज इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. सो उन्होंने लास्टली ये कहा कि सर्विस वाला जो मैटर है ना उस पे हम कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे हैं या उस पे हम कुछ डिसीजन नहीं दे रहे हैं, रादर वी आर रेफरिंग इट टू अ डिवीजन बेंच. अब जब डिवीजन बेंच के पास मैटर गया तो डिवीजन बेंच क्या होता है, यहाँ पे 2 जजेस होते हैं. तो इस समय देयर वाज 2 जजेस जिन्होंने स्प्लिट वर्डिक्ट दिया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि देखो दिल्ली गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल या कोई से नहीं होना चाहिए सर्विस मैटर्स में, व्हाइल द अदर जज दैट इज जस्टिस ए.के. सिकरी का कहना था कि ठीक है अप टू अ लेवल दैट इज सेक्रेटरी लेवल का जो पोजीशन है उसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर विल बी रिस्पॉन्सिबल, बट उसके बाद का सारा सर्विस पोस्ट जो भी है वो सारा दिल्ली गवर्नमेंट के पास आना चाहिए बिकॉज अदरवाइज दिल्ली गवर्नमेंट को फंक्शन करने में डिफिकल्टी होगी. अब सिंस वापस से यहाँ पे स्प्लिट वर्डिक्ट आया तो द दिल्ली गवर्नमेंट अगेन वेंट टू द कोर्ट. सो यहाँ पे 3 जजेस की बेंच के पास गई, बट अल्टीमेटली सिंस यहाँ पे इंटरप्रिटेशन की बात हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन को हमें इंटरप्रेट करना था, आर्टिकल 239AA में क्या बातें हैं, कितना पावर है, इसको इंटरप्रेट करने की बात हो रही थी, तो 3 जजेस बेंच अगेन रेफर्ड इट टू
a 5 judges bench. So this was headed by Justice, current Chief Justice of India, Justice Deepak Mishra. तो unanimously यहाँ पे verdict आया. अभी ये थोड़ा सा हम समझते हैं कि what is the verdict all about, because this is something which is very relevant, very important for us. So in this matter, first of all, central government was saying कि नहीं, lieutenant governor का कंप्लीट से होना चाहिए, कंप्लीट डिस्क्रिशन होना चाहिए. यहाँ पे द दिल्ली गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर. वाइल दिल्ली गवर्नमेंट का ये कहना था कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मुझे रिपोर्ट नहीं करेंगे, अगर दे विल नॉट सपोर्ट मी और वर्क विथ मी, तो फिर हाउ विल आई रन द टेरिटरी, हाउ विल आई रन इट. सो मैं यहाँ पे लॉ एंड जस्टिस डिलीवर नहीं कर पाऊंगा. सो अभी जब मैटर कोर्ट में था तो कोर्ट का ये कहना था कि देखो, सबसे पहले वी अग्री कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर है टू legislate on 3 matters, that is land, police and public order. So यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास सुप्रीम पावर होना चाहिए टू लेजिस्लेट ऑन द 3 matters ऑफ लैंड, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस. वाइल दिल्ली गवर्नमेंट ये कंटेंट कर रही थी कि अगर सर्विस के ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स मुझे रिपोर्ट नहीं करेंगे तो हाउ विल आई रन द टेरिटरी, मैं लॉ एंड जस्टिस का इम्प्लीमेंटेशन कैसे इंश्योर करूंगा. सो कोर्ट ने कहा कि देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर क्या है विथ रिस्पेक्ट टू द 3 matters, तो ये कहा कि कंप्लीट डिस्क्रिशन हम नहीं दे सकते हैं. यहाँ पे द लेफ्टिनेंट गवर्नर नीड्स टू act in aid and advice of the council of minister. Second, again complete statehood was denied कि हम complete statehood नहीं दे सकते because दिल्ली को sui generis कहा गया, मतलब कि it is one of its own kind. ये एक अलग तरह का, इसका अलग geographical location या अलग interest है यहाँ पे सेंटर का, with that is not with respect to other union territories, because दिल्ली हमारा कैपिटल है. सो यहाँ पे ऑब्वियसली यूनियन गवर्नमेंट का एक अलग इंटरेस्ट है. सो इस वजह से कहा गया कि ठीक है, हम स्टेटहुड नहीं दे सकते, बट यहाँ पर अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, जैसे आईएएस, आईपीएस, तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं वो सारे रिस्पॉन्सिबल हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, बट जो भी बाकी सारा अलाइड मैटर्स है विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस, विथ रिस्पेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर एंड विथ रिस्पेक्ट टू लैंड या फिर आईपीएस ऑफिसर्स, इन सारे का ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये सारी चीजें विल गो टू लेफ्टिनेंट गवर्नर. तो फाइनली कोर्ट ने ये जजमेंट दिया विच वाज कंप्लीटली इन फेवर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट. दिल्ली गवर्नमेंट को जो चीजें चाहिए थी वो उनको मिल गया. अब वापस से क्या हुआ आफ्टर दिस, अब सिंस द टसल वाज गोइंग ऑन, तो व्हाट हैपेंड कि पार्लियामेंट ने फिर एक ऑर्डिनेंस पास किया जहां पे इस ऑर्डर को, डीवाई चंद्रचूड़ की इस बेंच के ऑर्डर को वापस से नलिफाई कर दिया गया. ये ऑर्डिनेंस कहता है कि हम वापस से कंप्लीट डिस्क्रिशन दे रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को. सो वापस से अगेन, अब वापस दिल्ली गवर्नमेंट वेंट टू द कोर्ट कि ठीक है, आपने वापस से बोला व्हाट अबाउट द कलेक्टर, व्हाट अबाउट द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. तो आपने जो ऑर्डर दिया वो हमें समझ आया, लेकिन ये बहुत ही हमने वेग या ओपन एंडेड छोड़ दिया. हमें अभी ये नहीं पता कि हाउ, व्हाट आर द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ इट, कि हम कैसे इसको प्रैक्टिस में लाएं, हम कैसे ये समझे कि एग्जैक्टली कौन कौन से पोस्ट दिल्ली गवर्नमेंट के पास हैं, एग्जैक्टली कौन कौन से पोस्ट पे लेफ्टिनेंट गवर्नर विल लेजिस्लेट. सो वी नीड अ कंप्लीट क्राइटेरिया, वी नीड अ कंप्लीट सेग्रीगेशन, एक प्रैक्टिकल इसका कैसा इस जजमेंट का इफेक्ट होगा, एंड द ऑर्डिनेंस एज वेल. सो अगेन, even after the verdict came, the tussle is still ongoing. So let me know, what do you think about this ongoing tussle, and what are your take on this tussle in the comment below. Thank you.